اس کے خون میں راجا مہاراجوں کا خون دوڑا تھا اور ہوا کی طرح اس پر کسی کی بھی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ اسے بس دوسروں پر راج کرنا ہی سکھایا گیا تھا، اس پر کسی قسم کا کوئی زور نہیں تھا۔ یہ وہ بھی کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی عورت کے کنٹرول میں رہے۔ اس کے باوجود بھی اس کے خیالوں میں صرف ایک ہی چہرہ تھا جو اسے بار بار پریشان کر رہا تھا، اور چہرہ تھا سماحا کا، جسے وہ اپنی پوری طاقت سے بڑھ کر چاہنے لگا تھا اور کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ وہ کوئی بات وہ خود میں سماحا کے قریب جانے سے روک نہیں پاتا تھا، اور اس کی نگاہیں صرف اسی کا طواف کرتی، دھڑکنیں صرف اسی کی مالا جپتی تھی۔ مشتاق لالا دیکھ رہی ہیں آپ اس لڑکے کو، اس پر نظر رکھیے گا۔ وہ بھی مشکوک بات کرنے لگا تھا، مجھے فوراً آگاہ کریں۔ مجھے اس کی نیت پر شک ہوا تھا۔ وہ گاؤں سے آئے مشتاق کو دیکھتی ہوئی بولی تھی، جس پر وہ بلا گیا تھا وہی دادا جان کے پاس بیٹھا ابراہیم۔ باتیں جو ان کے ساتھ ہی کر رہا تھا، پلیز اس کی تمام نگاہیں، تمام تر حساسیت اور اس کے برابر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی اس کے سائے میں بھی چھوئے، اسے گوارا نہیں کرتا تھا۔ یہ بندہ کون تھا؟ جان بوجھ کر دادا جان جو سماحا کے اتنے قریب تھا، چہرے کے زاویے ان دونوں کے بگڑ چکے تھے، یا اتنا تو بتا مشتاق ہے کیا غلام، کیا فردین کا ہو چکا تھا، اور پھر ہمارے یہاں تو رہا، اور میں نے اسے پالا ہے۔ سماحا کو بہنوں کی طرح مانتا ہے۔ ایاز شاہ نہ جانے کیوں سے وضاحت دینے لگا، ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کبھی ابراہیم اذان تھا اور کہاں گوارا تھا۔ نظریں اب بھی انہی پر ٹکی ہوئی ہیں۔ دھیرے دھیرے اسے حیرتاری کیوں نہیں کر رہے تھے لیتے، تمہارے پاس بھی تو پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ جانے سے کمرے سے باہر نکلی تھی اور اس کی بے قابو زبان پر اچانک سے پھسلا تھا ایاز گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کچھ دیر کے بعد بولے، ہاں تو جا سکتی ہے، اگر وہ خود چاہے گی تو اس بول دیں گے وہ انکار ہے، نہیں تو ہمیں انکار کر دیں گے۔ ابراہیم کو دیکھ کر تو اسے ہمت لگائی تھی اور کیفا گونجا تھا، اور پھر اس کے بعد زور ہی ڈالتی تھی، جی دادو، یہ ہمارے مہمان اور ہر طرح کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، تو بیٹا انہیں شہر سے بھی کچھ خریداری کرنی ہے، تم ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ دادا جان کا حکم سن کر اس کے بوے دانت نکال تھے، کیوں مشتاق لالا کے ساتھ بھیج دیں ان مہمان کو، میں فارغ نہیں، تم میرے حکم سے انکار کرو گی؟ وہ ناراضگی سے بولے تھے۔ وہ سماحا سے پیر پٹکتے ہوئے اندر چلی گئی تھی، مجبوراً اس نے ابراہیم کے ساتھ جانا پڑا تھا۔ آج تو ابراہیم اذان کی جیسے ہی ہوش کا ٹھکانا نہ تھا۔ سماحا نے اس کے ساتھ پورا دن گزارنے والی تھی۔ ابراہیم اسے بہت تنگ کرنے والا تھا، اسے مختلف انداز میں اسے گالیوں سے اسے ساتھ خوار کیا تھا۔ بس کر دو یار، میں تھک چکی ہوں۔ بس اس کی تو اب بس ہو چکی تھی، میں تھک چکی ہوں۔ اب کی بار وہ جب وہ مال کی سیڑھی پر بیٹھتی ہوئی بولی تھی، کوئی نہیں تھا جب مزہ آ رہا تھا، چلو نا۔ اس کے ساتھ کھینچتا ہوا اسے اٹھاتے ہوئے چلا ہنسا تھا، میں سب سمجھتی ہوں، یہ جو تم سب کر رہے ہو نا، اس میں تمہارا کیا مقصد ہے؟ مجھے اچھے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے تیکھے نکوش سے بولی تھی، ہے واقعی اس کا مطلب ہے؟ تمہیں بن کہی میرے دل کا حال معلوم ہو گیا؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولے، تم یہ سب دادو کی زمین اور جائیداد اور سرداری کے لیے کر رہے ہو، لیکن میں اتنے سارے سے تمہیں یہ ہتھیانے نہیں دوں گی۔ اس کی بات پر ابراہیم کا صدمے سے برا حال ہوا تھا، وہ اس کی معصومیت پر ہنس دیا تھا۔ میری جان، تم جن چیزوں کے بارے میں بول رہی ہو نا، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ مجھے دیکھ کر کہ مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے، تمہیں طاقت کے لیے لوگ دشمنیاں نبھاتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، لیکن جو میں چاہتا ہوں اس کے لیے انسان مارے جاتے ہیں۔ اور زمانے میں انداز میں وہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ میری جان لفظ پر ہی وہ سرخ ہوتے ہوئے غصے سے کانپ رہی تھی، اور بے شرم کہیں کا اسے دل ہی دل میں ڈھیروں گالیاں دیتی ہوئی پیچھے سے وہ چلتی تھی۔ وائٹ ڈھیلی سی فل سلیوز اور شرٹ ٹراؤزر میں وہ تیزی سے دوڑ رہی تھی، اور صبح صبح کے حسین نظارے روح کو ایک الگ ہی تازگی بخش رہے تھے۔ وہ مسکرائی تھی تاکہ دوڑتی ہوئی وہاں کچھ نظر آیا تھا، اور زور سے چیخ مار کے رک گئی تھی، اور اس کا دل تیز سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہاں، میں تو روز ہی تمہارے پیچھے آتا ہوں نا، وہ الگ بات ہے کہ آج پتہ چلا کہ وہ گہری مسکراہٹ لیے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ ابراہیم بے اختیار ہی خوبصورت لگ رہی تھی، خوبصورت جھکا گیا تھا کہ سماحا کی نظریں اس کے مہنگے شاندار کپڑوں پر پڑتی، اور سیاہ بلیک ہوڈی پر ایک ہاکی پینٹ اور وائٹ جوکر جو بہت ہی وجیح لگ رہے تھے، دونوں اس وقت ساتھ ہی اچھے، خوبصورت اور مکمل لگ رہے تھے، جیسے ان کی ہاتھ
पहले से जो आसमान पर बना देंगे और इधर उधर की बातें करते हुए जैसे वापसी दोनों हवेली की तरफ आए तो वहाँ लाइट भी बड़ी बड़ी ऑन कर दी और खड़ा देखकर समाहार ने खुद का सांस रोका था। उसे अंदाजा नहीं था कि आज हवेली में क्या होने जा रहा है। तभी समाह तेजी से अंदर की तरफ आगे तेराही में उसके पीछे पलक पा। वो जैसे अंदर आई तो सामने उसे सेब जुतोई अपने बाप के साथ क्रोफर से बैठा दिखाई दिया था और चेहरे पर हल्का सा गरूर लिए वो मुस्कुराया था और सामने उसके दादा जान चेहरे पर जलाल और उसके आगे ही देख रहे थे। रहीम सब को ही देख रहा था और फिर रहीम को चेहरे को नसमझी से देखता फिर असला पेश किया था। गाड़ी गार्ड्स को दिखने लगा जो पूरी हवेली में फैले हुए थे। तभी दोनों की नजर में समा गई थी शजीब जतोई की जैसी नजर समा गई थी और उसकी आंखों में नशा छा गया था और उसे चौंकर समा के पीछे खड़े हुए लंबी सी बॉडी की और बिल्डर को हंसी नकुश को देख रहा था तो वो उसे खुद ही उनके हुनहुआर नजरों से देख रहे थे। समा अंदर जाओ यार, और इतनी खामोशी से जल्दी से तेजी से उसकी जानिब देखने लगे तो खा जाने वाली नजर से उसे देखते अंदर चले जाओ यार, इतना भी दोस्ताना नहीं होता तुम्हें दुश्मनी ही खत्म हो जाए। चाहो तो शजीब के साथ निकाह समाह का हो गया था, उसकी दुश्मनी को दोस्ती में बदल सकते हैं। और अगर जंगीर जुत्ते की बात सुनकर रहीम तो खुद ही खोल उठा था। उसने उस तरह खोलती निगाह से उसे देखा था और उसका दिल चाहा था कि कहीं टक्कर दे मारे। अभी जानवर भी जहाँ पर मौजूद नहीं थे। दफा हो जो यहाँ से। जंगीर जतोई ने उसके यहाँ से पहले जिरगे से जाने का फैसला किया। तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, तुम लोगों को दुश्मनी मंजूर है लेकिन समाज को भेड़ियों के हवाले कर दिया होगा, कभी नहीं हो गए। अरबाज शाह उसकी तरफ देखते हुए जमीन पर ताड़ते हुए मारता है और फिर अय्याज शाह ने फटाफट से ऑर्डर किया था इज्जत तुम्हें राज रही। जहांगीर और शाहजेब गुस्से में खड़े होते हुए वहां से गया था। दादजान क्या हुआ, ठीक जो है ना? फौरी से उनके निकलते ही वो उसकी तरफ दौड़ा था। सोफे पर वो बैठा हुआ था और भागकर उनके पास आया था। रहीम बेटा, क्या तुम उसे कोशिश कर रहे हो? उसके हालात को समझने की कोशिश कर रहा था, परेशान था। उनकी बात सुन कर वो हैरान होते उसकी सांस ऊपर के ऊपर और दूसरी सांस नीचे थी और निकाह वो हकलाया था, सब कुछ जानता था। और ये भी कि तुम मोहब्बत करते हो उससे, तुम्हारी आंखों में तो नहीं लगता अब तुम खुद ही उसकी बात कर सकते हो, जबकि रहीम इंसान पर बिजली गिरी थी उसके मुंह से कहीं जानकर वो उसकी पुष्ट को सुनाते हुए वाकिफ थे। वे तैयार हो जाते चाह लेकिन एक बार तक कहे। वो दोबारा उसकी तरफ देखते हुए बोले थे, जब तक तुम वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। लेकिन उसके मंतव पर अय्याज हंस दिया था। आप क्या कह रहे हैं? उसके धोखे छोटे झूठे मकार इंसान से निकाह नहीं करूंगी। वो तो जैसे ही हद से उखड़ गई थी दादाजान की बात पर समाह मौके की निजात को समझो। दुश्मन अब हमारी इज्जत पर घात लगाए बैठा। क्या चाहती हो तुम्हारा गम लेकर दुनिया से जाऊं? अब वो रो दिए थे और ऐसे मत के मैं तैयार हूँ। आहर को वो बेबस होती हुई हथियार डाल गई थी और फिर सादी सी शाम में सुर्ख जोड़ा पहने उदास दिल के साथ वो रहीम एजान के साथ के नाम कर दी गई थी। ना कोई खुशी ना कोई जज्बा, वो हाली दिन लिए बैठे थे। वही रहीम के लिए बहुत बड़ा दिन था और आज की मोहब्बत आज उसकी मोहब्बत उस पल को मिल गई थी जिसका एहसास उससे अलग से उसका दिल धड़काया जा रहा था और अलग ही समा था। उसका दिल तैर रहा था। या शाबी हुई से दोनों को प्यार करते हुए उसे सीने से लगा गए थे, दुआ दे रहे थे। खामोश बैठी बेड पर लेटी थी, बिल्कुल उदास लग रही थी। उसका दुपट्टा एक तरफ रखा गया था, बाल बिखरे हुए थे। चांद की रोशनी में उस पर पड़ती हुई उसके नाजुक जिस्म की चांदनी की तरह रोशन कर रही थी। तभी कोई खिली खिड़की से अंदर कूदा था और उछल कर बेड पर बैठी हुई फटी आंखों से रहीम को देख रही थी। आंखों में खुमार लिए उसे देख रही थी। निकाह के बाद वो पहली बार एक दूसरे को देख रहे थे। ये क्या बदतमीजी है? रहीम गुस्से से काम गई थी। जबकि वो आयशा से उसके करीब आता हुआ उसकी आंखों में देखता हुआ बोला था, अब तो मेरी हर तमीज और बदतमीजी आपसे मुंसलिक है। मैं अपनी बीवी से जैसे मिलने आऊं। वो प्यार से उसके चेहरे पर हाथों से फेरते हुए बोला था, बकवास बंद करो अपनी, मैंने ये सिर्फ निकाह दादाजान की खुशी के लिए किया है। तुम किसी खुशफहमी में मत रहना। मैं इस निकाह को नहीं या तुम शोर के रूप में कभी भी तस्लीम नहीं करूंगी। मसरूर आंखों से बोली और रहीम हल्का सा मुस्कुरा दिया था। चलो नहीं मानो, लेकिन मैं तो तुम्हें दिल जान से बीवी मान चुका हूँ। वो मरते दम तक तुम ही इस रिश्ते पर फाइज रहोगी। ये छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए, हमारे निकाह का। अगले अपने गले में चेन निकाल कर उसकी पतली गोरी गर्दन में पहनाया
पहनाता हुआ وہ تھوڑا سا جھکنے لگا تھا اور بہکنے لگا تھا، پھر مشکل سے خود پر کنٹرول کر گیا۔ اسی لمحے وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوئے تھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں سماحہ، جب تک تم اس رشتے میں پہل نہیں کرو گی، رحیم تمہیں ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔ ہاں، اگر تم نے غلطی میں پہل کر دی تو پھر میں اپنی گارنٹی نہیں لیتا۔ میں کس حد تک جاؤں گا؟ آنکھ دبا کر شرار سے کہتا ہوا وہ جیسے ہی آیا تھا ویسے ہی چلا گیا تھا۔ سماحہ کے گلے میں پہنی ہوئی چین کو آہستہ سے چھوا، نہ جانے کیوں اس کا دل الگ ہی لے پہ دھڑکنے لگا تھا، اور اگلے دن وہ واپس اپنی اصل حویلی لوٹ آئے تھے، اور آتے ہی عیاش شاذ کچھ بیمار سے رہنے لگے۔ سماحہ کو ان کی بہت فکر رہتی تھی۔ اب تو وہ رحیم بھی ان کا خیال رکھتا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دادا جان کو شال اڑاتا دیکھ کر وہ حیرانی سے پوچھنے لگی۔ ایک جرگے میں مجھے بلایا گیا، جانا ضروری ہے بیٹا، وہ نے کہا سے بولے تھے۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ رحیم اندر سے آتا ہوا بولا تو ایاز دیکھ کر مسکرائے تھے۔ نہیں رحیم، تم میرے ساتھ جاؤ گے تو تم سماحہ کی حفاظت کون کرے گا؟ تم یہی سماحہ کے پاس رہو، مشتاق کے ساتھ جا رہا ہوں۔ یہ کہتے وہ چلے گئے تھے، اور سماحہ جیسے ہی پلٹی تھی، رحیم کی خود پر جمی نظروں کو دیکھ کر وہ سٹ پٹائے تھی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہٹو یہاں سے، وہ اس کی سائڈ پر کرنے کی گزرنے لگی تھی، مگر جب اسے دھکا دیا تھا تو وہ اندر کی طرف بھاگی تھی۔ اور پھر نہ میں نے تمہیں خود پر محبت مجبور کر دی تو میرا بھی نام رحیم احسان نہیں۔ یہ کہتے ہوئے سیٹی بجاتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ سماحہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ باہر کا منظر حسین نظر آ رہا تھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نظر ڈال لیتا۔ بڑا سا سوئمنگ پول جس کا نیلا سورج اور روشنی سے چمک رہا تھا، اور تمیز زوردار آوازوں کے ساتھ پرسکون پانی میں بھی کسی کے گرنے کی ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ سماحہ تو ہڑبڑا سی گئی تھی۔ کوئی ہے جو مجھے بچاؤ! وہ سوئمنگ پول میں گرا تو زور زور سے ہاتھ پاؤں مارتا چلا رہا تھا۔ رحیم سماحہ کی آنکھیں سامنے کا منظر دیکھ کر پھٹ گئی تھی۔ وہ پا کر اب کی بار خود اس خوفناک منظر کا دیکھ رہی تھی۔ رحیم وہ ڈوبتے ہوئے دیکھ کر اسے چلائی تھی۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ یا اللہ، کیسے بچاؤں! وہ خود ہی پانی میں اتر کر اسے بچانا چاہتی تھی، لیکن بول اس کے لیے گہرا کر دیا تھا۔ رحیم، میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرے۔ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتی ہوئی وہ بے بسی سے رو دی تھی۔ اس کے وقت ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ کیسے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ سکتی تھی؟ بنا سوچے سمجھے وہ ان کی خاطر پول میں گر پڑی تھی، لیکن کیا ہوا؟ اس کو بچانے کی بجائے الٹا ہاتھ پیر تیزی سے چلا رہی تھی۔ رحیم تیزی سے اس کی طرف آتا اور اسے ایک کمر سے تھام کر اوپر کر گیا تھا۔ وہ زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ چلو اٹھو! وہ جسم ایک دوسرے کی طرف پوری طرح سے وہ کانپ رہے تھے۔ سماحہ نے وہ جلدی سے ہاتھوں سے گردن کی طرف جکڑ لیا تھا، اور اس کے بھیگے ہوئے ہونٹ اس کے آپس میں مل رہے تھے۔ رحیم تو ان لوگوں کی زد میں کھویا ہوا دان اس پر شدتیں لٹانے کے لیے کافی تھا۔ تبھی اسے یاد آیا تھا کہ وہ خود ہی اس پر ڈوب جائے، مگر وہ اس حد تک وہ اسے لیکن سماحہ کو پانی سے اوپر ہی رکھے ہوئے تھا۔ سماحہ اس کا کھیل سمجھ نہ سکی اور اس معصومیت سے اسے کھینچ کر کنارے پر لاتے ہوئے اوپر کی طرف دھکیلنے لگی تھی۔ رحیم اب اوپر لیٹتا ہوا اوپر تیز تیز سانس لینے لگا۔ رحیم، تم ٹھیک تو ہو نا؟ بولو! وہ اس پر جھکی اور اس کی گال پر تھپتھپانے لگی۔ بہت دیر کی تکلیف سے رحیم اس کی جانب بولا تھا۔ سماحہ نہیں، اس نے سماحہ تم سانس نہیں آ رہی تھی، وہ ہانپتے ہوئے بولا تھا۔ اب کی بار اس کی جان لبوں پر آ گئی تھی۔ کیا کروں کیا نہ کروں! وہ بدحواسی چہرے کے ساتھ وہ پھر سے بولی تھی اور جھکی اس کے پاس۔ رحیم کی جانے کے بجائے وہ کوئی اور ہی رستہ نہیں تھا جو اس شرم و حیا اس وقت اس کے برابر اس پر لعنت بھیجتی ہے، اور اس وقت وہ سرخ ہونٹ لیے زور زور سے اس کا دل دھڑکا رہی تھی، لیکن رحیم آنکھیں بھیجے ہوئے اسے لذت بڑے لمح سے اسے مست ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ سماحہ کے بالوں میں اور دوسرا ہاتھ کپ میں رکھے ہوئے تھے، اور اس وقت اس کا نہ ہو کرنٹ سا لگا تھا جب رحیم نے ری ایکٹ کیا تھا۔ اب کی بار تو اس کے ہونٹوں سے بھی چوسا ہوا اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ سماحہ اس کی سانس روکے ہوئے تھی اور پوری آنکھوں سے اسے دیکھ ہونٹوں پر وحشت لٹاتے دیکھ رہی تھی۔ تبھی رحیم بہت آہستہ آہستہ کسی پھول کی طرف اپنے آپ اوپر کرتا ہوا زور سے اس کے دل خراشی جسم کے نیچے چھپ گئی تھی۔ اب وہ شدتیں برداشت کر رہا تھا، کبھی نیچے کر کے اور سماحہ اس کے کبھی نیچے تو کبھی اوپر۔ پورے 20 منٹ کے بعد رحیم کے کمرے میں اس کی سانس بحال ہوئی تھی۔ آتے ہی اس کے سینے پر زور زور سے مکے مارنے کرنے لگی تھی۔ رحیم ہنستا ہوا ایک طرف سیٹ ہو کے اور بیٹھا تھا۔ میں نے کہا تھا سماحہ ایک دم سے
गिरने वालों में हाथ फेरता हुआ वो उसके पीछे चलता हुआ वो सुबह से बोला था। सुबह का भीगा जिस्म किसी खूबसूरत नाजुक गहराइयों से उसे पास करने लगी थी, जैसे जिन्हें वो पूरे साहस के साथ उसे अपने लब काटने लगा था। तुमने धोखे में ये सब कुछ किया ना? ये करने के लिए वो गुस्से से घूरते हुए उसे बोली थी। हाँ तो अपनी जिंदगी के लिए भी किया बार बार। मैं तुम्हें बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो वो वो हर बार मत पहल पहल मत किया करो, वो उसके बाद शर्म आती है। ये रोमांस भी मत किया करो, दांत खिंचा कर वो बोला था। और सुबह ने सदमे से उसकी जानिब देखा। तुम्हारी शर्म हो या तेज तेज दिमागी से क्या कोई ऐसे जानवर की तरह भी करता है? आंखों से तुम्हारे हैवानात टपक रही है और कहते हुए मुझे शर्म आती है। रोमांस से वहाँ गुस्से में वहाँ रखी हुई प्लास्टिक की बोतल कुर्सी से उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई थी और उस कुर्सी पर बचता हुआ वो प्यार से उसके चेहरे पर उसको देखने लगा था। सुबह ने जोर जोर से उसे मारा था और दूर रहना मुझसे, ये कहती हुई अंदर चलेगी। रहीम वही खड़ा सीना मसलने लगा था और हंसने लगा था। अब तो तुम दूर जाना ही पड़ेगा, मेरे पास में नहीं है। और उसने सुबह को अपने दिल की आवाज़ सुनाई थी, लेकिन उसके साथ साथ कोई शर्म का नहीं। और एकदम से वो शुरू हो गया था कि अजीब सी फीलिंग के अंदर वो गिरा बैठा था और ये रहीम बेबाकियां उसकी अरूज पर थी और उसके छूता हुआ होठों को चुभ रहा था। लम्हा बलम्हा उसकी पनाह में झेलती हुई वो उसके कमरे में थी और शायद उसके निकाह के बाद आज पहला दिन था। निकाह के बाद फौरन ही वो एजान कबूल कर रहा था और वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि कोई क्यों खिड़की खोलता अंदर बाहर देख रहा था और चुकर उसका दिल धक धक से रह गया था। मम्मा मैं आके रहीम कभी किसी को देख कर कभी किसी को चली आई थी और रहीम की तरह से उसके एक एक नगूश को अपनी गर्म निगाहों से वो चूम रहा था। और उस वक़्त जहाँ मर्जी में जाऊँ, जहाँ मेरा दिल करे, बिना दिल सोचे समझे इस तरह आगे पीछे होने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ सो नहीं सकते, उठो फौरन यहाँ से। वो धड़कते दिल के साथ उसके आगे पीछे बोली थी। अरे यार कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कर रहा, आ जाओ मेरे पास, यहाँ लेट जाओ। वैसे भी सब सो गए हैं, बस तुम अपनी लिमिट्स में रहना, वरना वरना मैं तुम फिर जानती हो ना कि वो एक आंख दबाकर उसे वार करता हुआ बोला था। और सुबह ने गुस्से से बस मिले जुले तासरात दिए थे। और जाओ जाओ, जानती नहीं थी कितना सिद्धि है, वो कह देता था। फिर करके भी गवाही कोई रास्ता नहीं था। तभी वो दूर हटी थी और उसकी तरफ वो उसकी जानिब देखने लगे। अराहिम की आंखों में जज्बात का ठट्ठे मारता हुआ समंदर था। वो उसकी जानिब देखे, पता नहीं क्या चला था। अब तो होश तब आया था जब सूरज की बदलियों ने जागा था और उसकी शरारत कर रहा था। हड़बड़ा कर उसकी जानिब देखने लगी जो गहरी नींद में था। खूबसूरत चेहरा पकड़े माथे पर बालते समाओं से बहुत करीब देखने लगी थी। दिल लगा था और फिर अनजाने में उसे चेहरे पर थोड़ा सा झिझकते हुए उसे देखने लगी थी और उस पर झुकी थी। उसने हाथ में बढ़ाकर बड़े मान से उसके आगे हाथ जोड़े थे, पीछे हो गई थी। तभी ये रहीम भी आंखों को मसलता हुआ नींद से उठ बैठा था और ऐसी भरपूर नींद महबूब के पहलू में जब बार बार उससे याद आ रही हो और उसने अपने आप को संभालना चाहा तो उसके बाद सुनता वह अपने कमरे की जाने बढ़ गया था। अरहिम अरहिम भी उसका इंतजार कर रहा था। मिस क्या कर रहे? निकाह भी तो कर चुका था, क्या बच्चों के साथ आएगा? आज उसकी क्लास लेता। बोला था हाय क्या करूँ, मानती ही नहीं, वरना बाप बनने की ख्वाहिश में तुम्हें कब से दे चुका था। वो उसकी कुर्बत में भी उसके पुरतकबल याद करता हुआ हंसा था। शर्म के बगैर इंसान निकाह को 3 दिन हो गए, अभी वैसे की वैसे ही तेजी से जान निकलती है और करीब कैसे जाता होगा। वो मशरक़ की लड़की और मशरक़ की लड़के को अपनी मर्जी के साथ जीने का कोई हक नहीं था और उसका मजाक उड़ाता हुआ और वो उठा और शर्मिला सा मर्द साफ कर रहा था, क्योंकि मोहब्बत में पहला पौधा लगा चुका था और बाद में सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे लिए आती है। आपके दिलावर के लहजे में हैरत थी। और नहीं यार, वो तो मुझसे ज्यादा शर्मीली, ये हाथ पकड़ो तो शर्म से सुर्ख हो जाती है, तो फिर सामने वाले दोनों का रोमांस कौन करता है? और झिझक गया था और ज़ाहिर है मुझे ही ऐसे असबाब पैदा करने पड़ते हैं कि वो मेरे करीब खींची चली जाती है और उसके बाद फिर मुझे रोकना शायद उसके बस में भी नहीं था। और कल की धुआंधार पहली किस को तो याद करता हुआ रहीम बोला था। उसे ढेरों ढेरों गालियाँ देता हुआ फ़ोन बंद कर गया था और गाने उचकाते हुए वजह से ही
दादा जान के पास आया था तो समाहा को वहां बैठा देखकर तो आंख दबा गया था। समाहा कलस कर उसे देखकर रह गई थी। दादा जान अब की बार उसमें नहीं जाएंगे और जर्ग में आपकी जगह शिरकत मैं करूंगा। खड़ी होती हुई अपनी आरा फैसले सुनाकर चली गई थी। यह कहाँ जाने की बात कर रही है? अराही फिक्र से पूछ लेते हुए कि बस बेटा, ये जिनका बहुत है, मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं जा सकूं, लेकिन समाहा मजीद है कि वो जाएगी तो ठीक है, उसे जाने दो, और वो कमज़ोर नहीं, मैं उसके साथ उसकी ताकत बढ़कर ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। उसे किसी के खौफ से ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। अरहाइम ने अपने असली रूप में बोला तो इकबाल को अय्याज शाह भी उसे देखने लगे। ऐसा तो हम सब पर चाहते थे समाहा के लिए, मुझे तो तुम दोनों पर यकीन है मेरे बच्चों। वो प्यार से उसे गले लगाते हुए बोले थे। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझ तक लाना जा रहे मेरे साथ? उसे ड्राइविंग सीट पर डैशिंग पर्सनैलिटी के साथ बैठा देखकर तो वो हैरानी से बोलते, मुझ तक लाना? मैं ज़्यादा अपनी बीवी की हिफाजत तो उसका ख्याल रख सकता हूँ, इसलिए बैठ जाओ। वो इस पल काफ़ी संजीदा नजर आ रहा था और बिना बहस के चुपचाप बैठ गया था। उसे अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। फिर तमाम रास्ते वो दिल खोल कर तंग करता हुआ आया था। कभी शरारत से उसके थाइस पर हाथ रखते और कभी उसकी गाल खींचता, कभी उसके हाथ को थाम कर लबों से लगाता और कभी उसे तंग करने की पूरी आज़ादी मिल गई थी। समाहा तो अपने आप को रोकती हुई थक गई थी तो चुप होकर बैठ गई थी। राहीम उसके पाँव पर ढेरों प्यार आया था और तभी सुकून से खुद भी बैठ गया था और उसका बस थाम गया था, हाथ थाम गया था जो समाहा ने भी छुड़ाया था। सरदार अय्याज शाह ने अच्छा नहीं किया, चाहता तो दुश्मनी खत्म करके सितारे में बदल जाए, लेकिन उसने तो समाहा का उस अजनबी से निकाह कर दिया था। ना तो उसके हालात को पता, ना ही नस्ल का। अब तो ये किसी और दुश्मनी किसी तरह खत्म ही नहीं। अय्याज शाह हवेली में मेरा नाम ही करनी है। जहांगीर जी तो जैसे जैसे गुस्से के बल खाते हुए बोले थे तो रहीम रहीम अब समाहा की जानिब बोला था। आग भड़क में उसके रहीम के हाथ में मजबूती से पकड़ा था और उसे रोका था। सरदार याज, तुम दोनों सबकी फितरत के मालिक को बखूबी वाकिफ थे। जो उसके खानदान की मौत की घाट उतार देता था वो रिश्ता क्या बनाएगा? हवेली तो क्या, एक छोटी सी भी आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तुम लोगों को जो करना है कर लो। वो खड़ी बोली हुई थी और जब जहाज़ेब जतोई उसके पास चलाया था, लगता है या शाह को कोई खौफ था जो उसे निकाह कर दिया था। मजाक उड़ाते हुए अरहम को देखता हुआ समाहा बोला था और एक एक से काफ़ी ताकतवर था और नजर आ रहा था। और ना ही या शाह तुमसे डरता है, ना ही रहीम याज से वो डरता है। जहाँ तक पहुँच जाएगा दुश्मन को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, नहीं तो इंसान गुरूर और अकड़ से ही उसे ले डूबता है। रहीम अपने असले से लेस आदमियों की मौजूदगी में डरा रहा था और उसे मालूम नहीं था कि वो कमज़ोर उसे सामने खिलौना है और डरना तो उसके सीखा ही नहीं। रहीम उसकी नादानगी पर हंस दिया था। जहाज़ेब जतोई ने अपनी तौहीन लगी थी और उसने गुस्से से रहीम के सीने पर हाथ मारा और उसको ये करना ही था। कदम पीछे होते हुए अपने भारी जूते की जोरदार लात उसके सिरे पर दे मारी थी, जिससे वो दूर जाकर गिरा था और नाक मुंह से हूर बहने लगा था। माहौल पाल में बिगड़ा था और उसके तमाम गार्ड्स गन लोड करते हुए उसकी तरफ बढ़े थे। राहीम भी कमर से उस अपनी टांगों से गज निकालते हुए समाहा को खुद से दूर करते हुए पोजीशन ली थी। समाहा की तो जैसे जान निकल ही गई थी। पता नहीं क्यों रहीम एक ठोकर भी लगने से थोड़ा सा दर्द का तूफान उठते जिस में क्यों दर्द दौड़ता है। वो होप से उसे ही मारते करीब आती हुई उसकी शर्ट मुट्ठियों में पींच गई थी और खड़ी हो गई थी। समाहा दूर हटो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। वो गुस्से से ताड़ता, अगर मरना ही आसान है तो फिर मैं मरना चाहती हूँ, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो उसकी मोहब्बत पर और लहजे पर वो बोली थी। अगर तुम्हें कोई भी पल रहीम की खुशी से पागल होता है तो प्लीज़ पीछे होते हो, लेकिन इस पल वो सिर्फ उसे आंखों से देखे और वही जहांगीर जतोई अपने बेटे का मुंह देकर जतोई हो गया था और जब बेखुद चिल्लाया था, इन कोई गाली नहीं चिल्लाएगा, तुम्हारे बेटे की है। जहांगीर उसे हाथ से उठाना चाहता था। इन दोनों को जाने दो जरगा, अब अय्याज के ठीक होने के बाद ही होगा, ताकि एक बार ही फैसला हो जाए। अब वहाँ के बड़े सरदार खड़े होते बोले थे, मैं अपने बेटे को बदला लूंगा। जहांगीर की गुस्से की रंगत लाल हो रही थी। बदला बाद में ले लेना, उसकी औरत उसके साथ है। क्या ये एक सरदार को जेब देता है? वो औरत के सामने मर्दानगी दिखाए। सरदार की बातों पर जहांगीर गुस्से से बल खाता हुआ खामोश वहां से जहाजेब को लिए चला तो वो गया था, लेकिन उसके दिल में बदले की आग से जला गया था। रहीम ने एक नजर सरदार आने पर डाली और फिर समाहा का हाथ थामता हुआ वहां से निकल गया। तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में कूदने की? जब मैं बात कर रही थी, समाहा गुस्से से बोली थी, तो क्या करता?
बेगैरत की तरह अब उसे अपनी बीवी के मद्दे मुकाबिल आकर बात करता देखता रहता। मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। कोई भी मर्द बीवी मेरी बीवी के रूबरू होकर मैं जान से मार दूंगा उसे। रहीम की आंखों में खून लिए जोर से स्टेयरिंग पर हाथ मारता हुआ बोला था कि सुमहा उसके गुस्से से हकी बकी रह गई। रहीम का आज पहली बार जलाल देखा तो, वरना तो वो हमेशा ही चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में इशारत लिए उससे मिलता था। तुम नहीं जानते कुछ भी, ये दुश्मनी बहुत पुरानी चली आ रही है, इसलिए मैं इस निकाह के खिलाफ थी। वो कभी भी अयाज की शाह के खानदान में फलता फूलता नहीं देख सकेंगे, वो मार देंगे हमें। सुमहा की आंखों में आंसू फिसलने लगे थे। रहीम ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। फिर क्या चाहती हो? मौत के खौफ से डर डर कर जिंदगी गुजारना चाहती हो? उनके लिए अपनी खुशियों को आग लगा देना चाहती हो? रहीम तो सचमुच आग बगला हो गया। तो मुझे डर अपनी जिंदगी या मौत का नहीं है। रहीम वो आगे बोलने से पहले बेबसी से उसे देखती हुई चुप हो गई थी और गाड़ी से निकलकर बाहर आती तेज तेज सांस लेने लगी थी। रहीम भी बाहर आता हुआ उसके बहुत करीब जाते हुए बोला था, चुप क्यों होगी? बोलो फिर किसका डर है तुम्हें? आंखों में कई रंग लिए वो उसे कमर से पकड़कर खुद के बहुत नजदीक किया। तभी आसमानों से तेज बारिश बरसती उन्हें भगोने लगी थी और इस बार दोनों के दिल तेज धड़कते हुए सांस और एक दूसरे में घुल रहे थे। तभी बारिश की वजह से पहाड़ों पर से कई पथरीले पत्थर नीचे गिरने लगे। रहीम उसे एक तरफ खींचता हुआ जैसे उस जगह से दूर हुआ। तभी उसका पांव फिसला और वो तेजी से खाई में गिरने लगा। सुमहा के दिल खराशे चीख हर तरफ गूंज रही थी और अपनी शाल वही फेंकती हुई उसके पीछे तेजी से बढ़ने लगी। रहीम रहीम वो पागलों की तरह रोती उसके पीछे जा रही थी। जब रहीम एक तरफ से टकराता हुआ वहीं रुक गया था। रहीम क्या हुआ? रहीम आंखें खोलो, वो उस पर झुकी पागलों की तरह से चीख रही थी। ऊपर से तेज बरसती हुई बारिश। रहीम मैं मर जाऊंगी, प्लीज प्लीज उठो। आपके वो उसकी शर्ट को झंझोड़ रही थी। तभी रहीम ने शरारत से आंख खोलते हुए उसे कमर से पकड़कर जोर से अपने सीने से लगाता हुआ उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में ले गया था और वो शिद्दत से उसकी सांसों को कतरा कतरा खुद में उंडेल कर जैसे सुकून हासिल कर रहा था। एक बार उसके होंठ जकड़कर जैसे वो छोड़ना ही भूल गया था। उसके अमल में शिद्दत महसूस करते हुए सुमहा उसे गालर से थाम गई थी। रहीम मजीद जुनूनी होते हुए उसे अपने अमल में शिद्दत बढ़ाते हुए उसे दूसरी तरफ गिराता हुआ उसके ऊपर आ गया था। अब वो बेरहम सा उसकी गर्दन पर झुककर अपने लम्स बिखेरने लगा था। सुमहा उसकी शिद्दतों से निढाल हो रही थी, लेकिन उसकी सांसें पीने में मसरूफ था। फिर मजीद झुककर उसकी सांसों धड़कनों को ऊपर से काटा तो सुमहा से सिसकारियां भरने लगी। रहीम उसकी सिसकियों से मजीद बहक रहा था। आंखों में खुमारी छा रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे अपने एहसास पर काबू पाना नहीं आता था। एक तो मलकियत का एहसास, दूसरा उससे खुद से दूर करने से खून खोल गया था। रहीम दूर होते ही उसकी हालत पर तरस खाते उसे अपने सीने में पींच गया था और वो उसकी शिद्दतों से बेहाल होती हुई सर उसके सीने पर टिका गई थी और अपनी सांस से हमार करने लगी। कहती क्यों नहीं कि रहीम एजान से मोहब्बत होगी या उसे खोने के खौफ से तुम डरती हो? और अपनी हमारी भरी आवाज में सरगोशी करता हुआ वो उसकी कमर भी सहला रहा था। सुमहा उसको संभालती अब शिकवा भरी नजरों से उसे देखती हुई उसके सीने पर मार रही थी, जो हर बार उसके नाजुक जज्बों से खिलवाड़ करता उसकी जान लेता रहता। रहीम ने प्यार से उसके माथे पर होंठ रखे थे और साथ ही उसकी नाजुक पंखड़ियों का शिद्दत पर बोसा लेता हुआ पीछे हटा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था उसकी नाजुक पंखड़ियों को चाहे जितना भी चूम ले, लेकिन उसकी तिश्नगी कम नहीं होगी। तलब मजीद बढ़ेगी और सुमहा बेइख्तियारी उसके सीने से लगती हुई आसूदगी सी आंखें मौत की थी और खुद सुपुर्दगी से बढ़कर इजहार मोहब्बत और क्या हो सकता है। रहीम तो खुशी से पागल होता उसे इतनी जोर से खुद में पीछ गया था कि सुमहा को लगा था कि उसकी पसलियां टूट जाएगी। मुश्ताक लाला सुमहा नजर नहीं आ रही। आपने उसे देखा? वो पूरे घर में उसे ढूंढ रहा था। रहीम हाँ, वो कह रही थी कि पास ही एक घर में जा रही है, 1 घंटा हो गया, आती होगी। मुश्ताक पौधों को पानी देता हुआ बोला था। रहीम मेरे भाई, काफी दिनों से मैं एक बात सोच रहा हूँ। तुम्हारा सुमहा का निकाह हुए महीना हो गया और तुम उसे अपने साथ ले क्यों नहीं जाते? तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब ये खेल खत्म करो। सुमहा को सच बता दो कि उसे अपने साथ ले जाओ। मुश्ताक पाइप एक तरफ रखता हुआ संजीदगी से बोला, आप ठीक कह रहे हैं। क्या सुमहा हकीकत तक जानने के बाद नाराज तो नहीं होगी? वो उसे अब उदास हो गया था। नहीं यार, औरत बहुत नरम दिल होती है। तुम उसे मोहब्बत से मनाओगे तो वो मान जाएगी। और फिर दादा जान में हम तो सब जानते हैं कि तुमने कोई झूठ धोखा नहीं किया। वो मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रख के सुमहा से बात करते हुए दादा जान से भी वो अब रुखसती दे ही दे।
वो पुरसोच लहजे में बोला था। तभी मुश्ताक का मोबाइल बजने लगा। ये हबीस मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है? मुश्ताक तेरे लब बड़बड़ाता वह फ़ोन उठा गया था। न जाने सामने से क्या कहा गया। मुश्ताक का चेहरा लाल हो गया था और आंखों से गुस्सा छलकने लगा था। जहांगीर जतोई, अगर तूने समाह को हाथ भी लगाया तो तेरे टुकड़े कर दूंगा। मुश्ताक के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो रहीम की रूह काम की थी। उसे मोबाइल छीनते हुए गुराया था। मैं बात कर रहा हूँ रहीम। रहीम एजान बोल। हा हा हा, अगर अपनी बीवी की जान प्यारी है तो फौरन मेरी हवेली पहुंच। इतना कहते हुए वो फौरन फोन बंद कर गया था। रहीम का तो बस अब जैसे सारा सब्र ही खत्म हो गया था। वो अपनी गन उठाता हुआ गाड़ी की तरफ जा रहा है ना अंदाज में बड़ा था। नहीं है रहीम, अकेले मत जाओ, तुम दोनों को मार डालेंगे। मुश्ताक उसे रोकने लगा था। हट जाए लाला, समाह इस वक्त मेरी जरूरत है और मैं उन सबको मौत के घाट उतार दूंगा। वो एक तरफ करता हुआ उसे घाट तक भगा कर ले गया था और जैसे ही हवेली पहुंचा तो सामने खड़े उनके आदमियों पर फायर खोल दिए थे और उसकी शूटिंग स्केल इतनी जबरदस्त थी कि एक ही झटके से उसने 10 आदमी को मौत के घात उठा दिया था और उसके पीछे ही मुश्ताक भी आदमियों के हाथ साथ पहुंच चुका था। जैसे ही अंदर आया तो सामने से महा एक कुर्सी पर आंसू से तर आंखें लिए खौफ से जड़ पड़े चिरते के साथ ही बैठी थी। रहीम को देखती जैसे वो खड़ी और एक आदमी ने उसके सर पर गन रख दी थी जिससे वो वापस वहीं बैठ गई थी। तो तुम आ गया रहीम, अब तुम दोनों मैं अपने बेटे की बेइज्जती का बदला दूंगा। मुश्ताक भी आ गया था। जब जहांगीर जतोई धमकी देता है तो उस पर फायर खोल गया था। मुश्ताक के आदमी और रहीम भी अब उसकी गोलियों का भरपूर जवाब दे रहे थे। समाहा को सिर्फ रहीम की जान की फिक्र थी। उसका रो रो कर बुरा हाल था और उसकी आंखों के सामने एक गोली दूर से आती हुई रहीम के बाजू पर जा लगी थी जिसे उसकी शर्ट खून से भर गई थी और उससे जोरदार चीख मारी थी और एक आदमी को धक्का देते हुए रहीम की तरफ भागी थी। रहीम जोर से जमीन पर गिरता हुआ आंखें बंद कर गया और उससे गिरता देखकर मुश्ताक की रंग बेफाक हो गई थी। समाहा बुरी तरह से उसे झंझोड़ती हुई चिल्ला रही थी लेकिन रहीम की आंखें बंद थी। जहांगीर मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया था और उसका बदला पूरा हो गया था। मुश्ताक आदमियों की तरफ से मदद फौरन रहीम को लेता हुआ अस्पताल की तरफ भागा था। हाँ, उसका बहुत खून बह गया था। मुश्ताक फिक्रमंदी से बोला था लेकिन समाह को उस पल जैसे कोई होश नहीं था। वो पागलों की तरह बस उसे देखे जा रही थी। तेज रफ्तार से गाड़ी ही अस्पताल के सामने जाकर रुकी थी और होश में आती इसलिए इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ गया था। उसे सिर्फ इतना याद था कि अगर रहीम को कुछ भी हुआ था वो भी उसके साथ ही मर जाएगी। अस्पताल का स्टाफ उसे अच्छे से जानता था, तभी उसकी मदद के लिए भागे थे। मुश्ताक रहीम के भाई को इत्तला दे चुका था और ड्राइवर ये सुनता शौक में रह गया था कि उसके भाई को गोली लगी है। मैं फौरन वहां आ रहा हूँ, अपने होपनाक लहजे में वो कहता फौरन चुका था और समाह ने अपनी पूरी जान लगाकर हार कर रहीम को बचा लिया और गोली उसके बाद से चीरती हुई निकली थी। लेकिन समाह की शायद मोहब्बत थी जो वो खतरे से बाहर था और उसके बालों से सहलाती हुई उदासी के पास उसकी मिली थी। तभी धाड़ की आवाज के साथ ही ड्राइवर और जाजिब अंदर आते हुए रहीम के पास आते हुए उसे देखकर रोने लगे थे और उनके साथ ही कई बॉडी गार्ड्स थे। समाह तो उन खूबसूरत और वेल ड्रेस्ड मर्दों को देखकर हैरानी रह गई थी। समाह तभी ड्राइवर उसके पास आता पूछने लगा जिस पर वह हैरान होते हुए सर हिला गई थी। तो ड्राइवर ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा था रहीम एजान मेरा भाई है। और फिर ड्राइवर ने समाह को सब कुछ सच बता दिया था और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उसी रात अपने आदमियों के साथ पूरे गांव के सामने अपने भाइयों का बदला भी ले लिया था। और एक रात ताकतवर खानदान था जिसके सामने सबकी बोलती बात थी। रहीम ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली तो उसने समाह का रोया रोया चेहरा दिखाई दिया था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। आहिस्ता से एक हाथ बढ़ाकर उसने अपनी बाहों में भर लिया था। मैं कब तुमसे मोहब्बत करने लगी मुझे नहीं पता, लेकिन तुमसे मैं मुकम्मल हूँ। अगर मनपसंद शख्स के साथ मुयस्सर ना हो तो दुनिया की तमाम आसाइशें होते हुए भी सुकून नहीं मिलता। फिर जिंदगी जी नहीं जाती, बस गुजारी जाती है। मैं सच दिल से इकरार करती हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ बेइंतहा, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह ताला ने न जाने मेरी कौन सी नेकी के सिले में मुझे तुम जैसे हम सफ़र से नवाजा है। उसके आंसू रहीम का सीना भिगोने लगे। इतनी मोहब्बत करती हूँ मुझसे, जानती हूँ मैं कौन हूँ। आपके रहीम ने उसे छेड़ा था। तुम कोई भी हो लेकिन आप मेरी दुनिया हो, बस तुम ही हो। ये कहती हुई प्यार से उसके होंठों को चूमने लगी थी। अरे तुम तुम दोनों का रोमांस खत्म हो गया हो तो मैं अंदर आ सकता हूँ, आ जाऊं। ड्राइवर की शरारत भरी आवाज पर समाहा एकदम से रहीम खिलखिलाकर हंस दिए थे और वो इस वक्त बहुत ही मुकम्मल लग रहे थे। लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आज का नावल आपको पसंद आएगा। आप कमेंट्स लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है नेक्स्ट नावल तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।